Yes, he is in. Okay. Hello, sir. Can you hear me? Greetings, sir. Are we audible to you? Yes, you are. Is there any issue that you're facing right now? Hello, Ajay, sir. Rani, are you there in the meet? Yes, I am. Please text Ajay, sir, saying that he'll have to give permission to join the audio. He hasn't joined the audio yet. Okay. He won't be able to listen to us. Hello, everyone. We'll wait a couple of minutes more and then begin with our workshop. I request everybody to switch their videos on. Hello. Yes, sir. ओके तो फिर कैसे स्टार्ट करना है? डायरेक्ट कंटेंट मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी. We'll begin with the introduction and फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं. हाँ, पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आएगी तो थोड़ा अवॉइड करना क्योंकि मैं अभी हाईवे पे हूँ. राइट पे जा रहा हूँ. Yes, sir. हाँ, बोलो. All right, we'll wait for a minute more and then we shall begin. Okay. Till then, I would like to ask our attendees that किसी को पता है क्या 16 days of activism against gender violence, gender based violence हम क्यों observe कर दे? Any one of you can just unmute yourself and answer. Okay, so I think nobody knows the reason behind it, but that's absolutely fine. We shall definitely know it at the end of the workshop. So I would request everybody कि आप सब लोग end तक रुको. And yeah, that's it. I would now request our host, Ms. Ashwini Mahajan, to begin with the workshop. Yeah, thank you, Kushi. Good morning, everyone. I'm Ashwini Mahajan, your host for today. I welcome you all on the behalf of Public Health Office of Keloth Institute of Pharmacy, Kopar Kherne, Navi Mumbai. I request you all to turn on your cameras and mute yourself to avoid any distraction. Our aim is to conduct healthcare campaign to magnify overall knowledge of society about various public aspects. So let's begin our today's workshop on self-defense on the accordance of 16 days of activism against gender-based violence, which is presented by GIP-PHO volunteers in association with Indian Pharmaceutical Association, Maharashtra State Branch, Students Forum. So, as asked in the beginning, why do we celebrate this day? 16 days of activism against gender-based violence, it is an international campaign which challenges violence against women and girls. The campaign runs every year from 25th of November to 10th of December. During the 16 days of activism, people around the world, they unite together and they raise the awareness about gender-based violence. They challenge the discriminatory attitudes and call for improved laws and services to end violence against women for good. Now, to begin with, what is gender-based violence? Many of us have suffered it knowingly or unknowingly. The term gender violence, it reflects the idea that the violence often serves to maintain structural gender inequalities and includes all type of violence against men, women, children, adolescents, gay, transgender people, and gender non-conforming. Most of the gender-based violence, it is not only verbal, but it is also physical and can take turn to most gruesome crime. So,
To defend oneself, one should know basic self-defense. For this purpose, we have arranged today's workshop and invited one of the most eligible trainer to train us in self-defense, Mr. Ajay Bundela. He is the 3rd degree black belt in Kung Fu. He is also 3rd degree black belt in MSD RYU Budo. MSD RYU Budo, it is an international association of martial self-defense. He is a MMA player and a kickboxer. He is in this field since last 12 years and teaching since last 8 years. Self-defense, it's not our right, but our duty also. So with a great pleasure, I honor Mr. Ajay for such incredible work in the field of physical education. I request Khushi Jaiswal to do the honor. Greetings, sir. We request you to accept our token of appreciation virtually, and thank you for joining in with us. Thank you, Khushi. So let's initiate our self-defense workshop with a bang on confidence that we can do it. Mr. Ajay, I request you now to begin. The audience is all yours. Okay. तो कोई क्वेश्चंस है किसी को कुछ पूछना है? डायरेक्ट स्टार्ट करें? सर आप डायरेक्टली स्टार्ट करें, हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स का सेशन मतलब क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगे. ओके चलेगा, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं. यस. मैं डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले थोड़ा कुछ बोल देता हूँ क्योंकि ज़्यादा बेटर रहेगा वो डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले. यस सर. तो अभी हम लोग ऑनलाइन सेशन है, अभी जस्ट ट्रायल है. इसमें अभी मैं आपको पंचेस बता दूंगा, किक्स बता दूंगा, एल्बो अटैक्स बता दूंगा, स्ट्राइक्स बता दूंगा. बट ये सिर्फ आपको एक मेंटली पता रहेगा कि हाँ ये सब करना है, बट आप लोग कर नहीं पाओगे. कोई भी सिचुएशन में ये नहीं कर पाओगे. करेक्ट? आप अभी 1 घंटे का सेशन है, इस 1 घंटे में मैं सिर्फ आपको बताऊंगा किस तरह से पंच करना है. वो पंच भी परफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है? पंच परफेक्ट करने में बहुत टाइम जाता है, प्रैक्टिस लगती है. एल्बो अटैक करना है, कोई भी सारे जितने भी सारे टेक्निक्स है जो भी मैं अभी बताऊंगा, बस कोशिश करना कि उनको जस्ट समझ लो और किस वे में आप यूज कर सकते हो, ठीक है? और अच्छे से करना है, खुद को सेल्फ डिफेंस करना है, प्रैक्टिस करना है. तो उसके लिए आप लोगों को इसका कंटिन्यू प्रैक्टिस रखना पड़ेगा. जैसे कि आप बाकी चीज़ों का भी प्रैक्टिस करते हो. कोई किसी की हॉबीज रहेगी, कोई ड्राइंग, कोई म्यूजिक, कोई आर्ट, कोई पढ़ाई, कोई वीडियोस देखता है, ज़्यादा से ज़्यादा अडेप्ट कर लेता है. आजकल रील्स देख के डांस भी सीख जाते हैं, बट ये उनसे ज़्यादा हार्ड होता है क्योंकि इसमें आपको सेल्फ खुद से ही वो करना पड़ता है और इसमें चोट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. इसमें आपका माइंड स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप ये कर पाओगे. ठीक है? मैं बात करने की आदत मुझे ज़्यादा है तो मैं बात करते जाऊँगा. इससे अच्छा पहले अपन स्टार्ट कर. ठीक है? यस सर. रोशनी शाहू, लगता है आप सबसे छोटे हो इसमें. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. ठीक है, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, क्योंकि बैठे बैठे तो कुछ नहीं होगा. बैठे बैठे जो बातें होंगी और जो किसी काम की नहीं. मैं हेडफोन निकाल रहा हूँ. ठीक है, जस्ट देखना है और करना है. थोड़ी थोड़ी आवाज आएगी आप लोगों को. तो फर्स्ट पहले नॉर्मल एक्सरसाइज से चालू करते हैं जिससे आप लोग थोड़ा घर पे भी कर सकते हो. अगर करना है, कंटिन्यू करना है तो ऐसा मैं आज कराऊंगा कि जो आप बेसिक में कर सकते हो. एवरी मॉर्निंग 10 मिनट्स 20 मिनट्स आप उसको अपना दे सकते हो. ठीक है? और जस्ट रोटेट योर हैंड फॉर 5 टाइम्स फॉरवर्ड एंड 5 टाइम्स बैकवर्ड. ओके, जस्ट फॉर शोल्डर वार्म अप. बहुत से कम लोग कर रहे हैं, बहुत से कम लोग नहीं कर रहे हैं. स्टार्ट डूइंग. डांस नहीं कराने वाला, कुछ ऐसा नहीं कराने वाला फनी. इट्स गुड फॉर यू, कभी काम आ जाएगा. बाद में करने से अच्छा, बाद में पछताने से अच्छा अभी करो. स्टार्ट डूइंग दिस. I request everyone to turn on their cameras. रोटेशन. Rotation 5, 4, 3, 2, 1 and change reverse. 2 times backward and forward. Change reverse. Yes.
थोड़ा थोड़ा बेसिक्स करेंगे, जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन के जैसा. चेंज हिप बैंडिंग, जस्ट बैंड योर हिप. ओके, ये सारे एक्सरसाइज करते वक्त आपके एक्सरसाइज नॉर्मली है, बट इसको एज अ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग मार्शल आर्ट्स में हम लोग कोई भी रोटेशन करते हैं, कोई भी मूव्स करते हैं, उसमें याद रखना है कि प्रेशर मेंटेन रहे. जैसे आप अभी ये हिप रोटेशन कर रहे हो, तो हिप में ये एक अटैक इमेजिन करके करो, ताकि रिफ्लेक्शन होता है. कभी कभी कोई सामने आ गया, किसी ने सामने से पकड़ लिया, तो आप इस चीज को रिफ्लेक्ट कर सकते हो. उसका भी अपन डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा. Now just hip rotation. 5, 4, 3, 2, 1. Change reverse. Reverse कर लो. Okay. Very good. Okay. Now for your knees. Knee bending. Knee bending. Exercise डिफेंस को सीखने से पहले फिटनेस भी जरूरी है. फिटनेस नहीं रहेगी, स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, स्टेमिना नहीं रहेगा, तो आप किसी को मार भी नहीं सकते और मार खा भी नहीं सकते. कुछ कैपेसिटी, ठीक है. नाउ जस्ट एंगल रोटेशन. 5, 4, 3, 2, 1. चेंज रिवर्स. 5, 4, 3, 2, 1. एंड चेंज योर लेग. 5, 4, 3, 2, 1. Change reverse. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, change. अभी हम लोग कर लेते हैं. एक्सरसाइज तो बहुत सारे हैं, फिर एक्सरसाइज ही करते रह जाएंगे, इसीलिए बेसिक टेक्निक्स पे जाते हैं. फर्स्ट टेक्निक है, 1 मिनट में लगा लेता हूँ. ठीक है, अभी हम लोग हैंड क्लोज कॉम्बैक्ट होता है, जैसे आपका जहाँ जिस चीज को आप टच कर सकते हो. अपन आपका कोई भी अपोनेंट है, सामने कोई भी एनिमी आ गया, कोई भी आपका अटैक कर रहा है, बैड टच कर रहा है, टच करने की कोशिश कर रहा है, आगे से फ्रंट में से आ रहा है, वो बैक से आ रहा है, वो साइड से आ रहा है. साइड से तो बहुत ही कम आते हैं, ज्यादा से ज्यादा इन केसेस में या तो पीछे से ही अटैक करते हैं या तो फिर फ्रंट से आपको अटैक करते हैं. तो उन केसेस में आपको क्या करना है, ठीक है. बेसिक पंचेस है, एडवांस पंचेस में नहीं जाएंगे. वैसे एडवांस पंचेस में बहुत सारे पंच होते हैं, जैसे नॉर्मल 4 होते हैं, जैब, क्रॉस, अपर कट एंड हुक पंच. अपर कट एंड हुक पंच मास्टर करने में बहुत टाइम जाता है, तो वो हम अभी नहीं करेंगे. अभी हम जो करेंगे सिर्फ स्ट्रेट पंचेस, जिससे आप स्ट्रेट अवॉइड कर सको, सामने वाले को दूर रख सको, ठीक है. इन पे भी कहाँ पे मारना है वो भी मैटर करता है. अगर आप पंच कर रहे हो सामने वाले को फोरहेड पे करोगे, कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला. आप पंच करो सामने वाले के चिन पे करोगे, कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला. आप सामने वाले के चेस्ट पे करोगे, कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि ये सारे पार्ट स्ट्रॉन्ग है. ओके, चिन यहाँ पे ज्यादा सेंसेशन नहीं होता है, ठीक है. आप खुद से टच करके देखोगे, यहाँ पे कुछ फील नहीं होगा आपको. आप अपनी नाक पे टच करो, अपने आईज पे टच करो, अपने साइड जॉ पे टच करोगे, यहाँ पे आपको पेन फील होगा, ठीक है. सेल्फ डिफेंस का मीनिंग है, अभी सेल्फ डिफेंस का सेमिनार है, ये सब सेल्फ डिफेंस को सीखने आए हैं, समझने आए हैं. तो सेल्फ डिफेंस में जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं, तो पहले बेसिक पॉइंट्स बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग फिर पंचेस पे जाएंगे, ताकि पंचेस करने में और प्रैक्टिस करने में आपको इंटरेस्ट आए. भाई मैं आपको पंचेस कराऊंगा, 1-2 बार करोगे, बाद में बोर हो जाओगे, वीडियो ऑफ कर दोगे, ठीक है. इससे अच्छा पहले उसके नीड्स जान लो. अब पंचेस क्यों कर रहे हो, क्यों करना है, कैसे करना है, उसके बेसिक पॉइंट्स क्या है. सेल्फ डिफेंस में बेसिक पॉइंट ये है कि पहले तो सेल्फ डिफेंस मतलब डिफेंस करना है, ठीक है. आपको अटैक नहीं करना है. अटैक कब करना है, जब सामने वाला आपके ऊपर अटैक करता है, ठीक है. जब सामने वाला को हार्म करने की कोशिश कर रहा है, आपको मॉलेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको टच करने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उस टाइम पे आपको अपने सेल्फ डिफेंस के लिए करना है. बट उसके लिए आपको स्ट्रांग होना जरूरी है. स्ट्रांग नहीं रहोगे तो अटैक नहीं कर पाओगे, स्ट्रांग नहीं रहोगे तो जरा सा भी कुछ सह भी नहीं पाओगे. अगर सामने वाला आपको पुश करता है, आप अपने आप गिव अप कर दोगे, आप डर जाओगे, आप कांपने लगोगे. उस टाइम पे आप इतने घबरा जाओगे कि आप आवाज भी निकलेगी. तो उसके लिए चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस. जो आप नॉर्मली एक्सरसाइज भी करोगे ना, नॉर्मल रनिंग भी करने लगोगे, तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है.
कि मैं 5 किलोमीटर रनिंग कर सकती हूँ, मैं 10 किलोमीटर रनिंग कर सकती हूँ, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। वो कॉन्फिडेंस से भी आप अपने आप को डिफेंस कर सकते हो। कैसे? कोई आया तो आप भाग जाओ, रास्ता दिखा भाग जाओ, एक सेल्फ डिफेंस। दूसरा सेल्फ डिफेंस, या तो पब्लिक के पास चले जाओ। तीसरा सेल्फ डिफेंस है अवॉइड करो। फर्स्ट, सबसे फर्स्ट एंड बेसिक है ये 3 चीज, भाग जाओ, पब्लिक क्राउडेड में एरिया में जाओ, कभी भी अकेले रास्तों को अवॉइड करो इन केसेस, और कर भी रहे हो उन रास्तों से जाना मजबूरी हो गई, कभी जाना ही पड़ रहा है, लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, बस में ट्रैवल कर रहे हो, उस टाइम पे गर्ल्स के साथ ऐसा बहुत बार होता है। मैंने देखा हुआ है, सेमिनार्स लेता हूँ मैं कंपनीज में, गर्ल्स के हैं बच्चे हैं, स्कूल्स में जाता हूँ, तो वहाँ पे यही कंप्लेंट आती है, सर हम लोग बस में ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, पीछे से हाथ आता है, बैड टचेस होते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करें? ठीक है, उस टाइम पे अभी मैं आपको बता पाऊंगा, कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप लोग को पार्टनर में होना जरूरी है, क्योंकि कोई बैड टच करेगा तो आप उसको कैसे डिफेंस करते हो। तो उस टाइम पे भी आपका फिट रहना, आपका मोबिलिटी जो होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग जाते हैं नॉर्मल पंचेस की तरफ, फ्रंट पंचेस करेंगे। ठीक है, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ओके, रानी पांडे, थैंक्स फॉर अ क्लैप। ठीक है, अभी क्या लगा? अभी जैसे बैक टच, ओके, नॉर्मल पंचेस, हम लोग डायरेक्ट पंच पे नहीं जाएंगे कि मैं आपको बॉक्सर के जैसा पंचेस सिखाऊं, उसका कुछ बेनिफिट नहीं है फिलहाल के लिए, तो आज एक ही दिन है। ठीक है, अभी सामने से बैक टच किस तरह से होता है गर्ल्स को। ठीक है, कोई मेरे को गर्ल्स बताओ, कोई गर्ल्स बताएगा तो मैं उसको और ज्यादा, किसी के घर में कोई है या कोई ओरली बता सकता है तो मुझे बताओ, टेल मी, किस तरह से सामने से आपको अप्रोच होता है बैड टच के लिए, ओपनली बताओ। शोल्डर पे हाथ रख जाता है, या हाथ पकड़ा जाता है, या ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, कंफर्ट फील नहीं होता, डिस्कंफर्ट फील होता है, क्या होता है मोस्ट मेरे को बताओ प्रोबेबली तो तो मैं उस पे तभी बताऊं। होता है जब सामने से आ जाते हैं एंड दे स्टैंड वेरी क्लोज टू अस। ओके, सामने से Yes. आते हैं, विदाउट टच भी अनकंफर्टेबल आप फील हो जाते हो। ओके, ठीक है। डेफिनेटली। कौन था, कौन बोल रहा था? खुशी। खुशी, ओके, ठीक है खुशी, पास में आ जाते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ। अभी समझो एक मैं गर्ल हूँ, ये कोई भी है अननोन पर्सन है, ये पास में आ गया, ओके, ऐसे पास में नहीं आते, कोई भी आ रहा है पास में तो या तो हाथ करने की कोशिश करता है, ठीक है, या तो एक हाथ पकड़ लेता है बात करने के लिए, आपको रोकता है, बट उस टाइम पे आप कंफर्ट फील नहीं करते हो। ठीक है, अभी इसने समझो मेरा हाथ पकड़ लिया, राइट हैंड पकड़ लिया, जो कि मेरा गुड हैंड है, अभी मैं इससे अटैक नहीं कर सकता क्योंकि मेरा लेफ्ट हैंड वीक है। ऑलमोस्ट सबका होता है, जो अपोजिट हैंड होता है बैड हैंड, इससे हम लोग यूज नहीं कर पाते, एनर्जी नहीं लगती। तो इस टाइम पे आपको पंचेस स्लैप बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? आप वो करोगे तो सामने वाले के अंदर ऑलमोस्ट पावर है, वो गुस्सा हो जाएगा, प्रवोक हो जाएगा, वो आपको ज्यादा हार्म कर सकता है। तो उससे पहले आपको उसके वीक पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करना है। वीक पॉइंट, जैसे वीक पॉइंट क्या है, अभी इसने मेरा हाथ पकड़ा, ठीक है, अभी हाथ पकड़ा है, कल अगर मैं इसको स्लैप करता हूँ, आप उसको स्लैप कर दोगे, ठीक है, ज्यादा पावर नहीं लगेगा इस स्लैप में, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसको और गुस्सा आएगा, फिर वो आपको हाथ छोड़ के गला पकड़ सकता है, उस टाइम पर आप ज्यादा डर जाओगे। ठीक है, अभी से मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे क्या करना है, इसके आईज, ओके, आईज पे फोकस करना है क्योंकि ये सबसे वीक है। आईज में एक बार हाथ चला गया, सामने वाला गिव अप कर देगा। आईज है, नोज है, आईज है, या फिर प्राइवेट पार्ट्स होते हैं जेंट्स के, ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स पे आपको अटैक करना है। जैसे मैं हाथ पकड़ा, हाथ को ना तो आपको खींचना है, खींचोगे तो वो और खींचेगा, आप कोशिश करोगे वो और टाइट करेगा। ठीक है, तो ये टेक्निक्स अलग रहते हैं। जैसे अभी इसने एकदम टाइट पकड़ा हुआ, देखो एकदम टाइट पकड़ा हुआ मेरा हाथ, आई कैन जस्ट माय wrist, बट इसी से आपको हेल्प करना है। मैंने खींचा, इसने भी और टाइट कर दिया, ओके, इस टाइम पे आपको क्या करना है, ये जो टेक्निक्स होते हैं ये ऑटोमेटिकली, कितना भी टाइट कोई पकड़े, ये ऑटोमेटिकली छूट जाते हैं। ठीक है, इनका आपको पार्टनर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो मैं आपको अभी इस पर नहीं बता सकता। तो अभी बेसिक इतना ही करना है, ये पकड़ा, वन, यू हैव टू जस्ट अटैक, नेक, नेक पे मारना है, टच नहीं करना है, ऐसा मारना है कि वो गिर जाए, मर जाए तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। इट इज कॉल्ड सेल्फ डिफेंस। उस टाइम पे आपको अपना सॉफ्ट हार्ट नहीं रखना है कि मैं इसको मारूंगी, लग जाएगा, ही विल क्राई, मेरा फ्रेंड है,
अगर फ्रेंड होता तो आपके साथ ये गलत नहीं करता और आपको कंफर्ट फील, ऐसा डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता। ओके, तो वो फ्रेंड नहीं है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मारना ही है, तो ऐसा मारो कि उसको लगे और वो छोड़ दे आपको। ठीक है, गले पे मार सकते हो आप, शांत खड़े रह के, जस्ट आपको ये फील नहीं कराना है उसको कि मैं भी मारने वाली हूँ सेल्फ डिफेंस के टाइम पे। ओके, उस टाइम पे आपको जस्ट नॉर्मली फील करना है, अवॉइड करो, बात करते करते सडनली आपको फिर उसके अटैक करना है। नाक पे आप अपने पाम से नाक पे अटैक कर सकते हो। ठीक है, नाक पे अटैक कर सकते हो, अपने फिंगर्स से उसके आईज में पोक कर सकते हो। थ्रोट पे गला मत दबाओ, लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में उतने पावर नहीं होंगे कि आप किसी ऐसे आदमी का या किसी लड़के को आप दबा पाओ। ठीक है, ऐसा नहीं कि गर्ल्स में पावर कम है, बॉयज में पावर ज्यादा होता है। गर्ल्स आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। कभी कभी मैंने भी मार खाया प्रैक्टिस के टाइम, बहुत जोर से मारते गर्ल्स, आई रिस्पेक्ट। बट इन सच केसेस जब आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपसे कुछ नहीं किया है आपने प्रैक्टिस, आप अपने आप को बोलते ना वो माहौल में नहीं हो, सेल्फ डिफेंस के या डिफेंसिव माहौल में नहीं हो कि आप स्ट्रांग हो, तो उस टाइम पे आपको ऐसे जितनी पावर है उतने पावर से वीक पॉइंट पे मारना है। अभी थ्रोट पे आप मार रहे हो, ठीक है, थ्रोट पे आप मार रहे हो, ये वाला पार्ट, इसको ऐसा पकड़ लेना है। ओके, पकड़ लेना, नहीं छोड़ना है। भले वो सॉरी बोल तो पाएगा नहीं, जब वो आंख में से आंसू निकल जाएंगे ना तब वो एकदम ही गिव अप कर देगा, तब छोड़ना है। चल मर जाए तभी छोड़ना। यहाँ पे पकड़ना है, आईज में पोक करना है, नाक पे मारना है, कान पे आप अपने पाम से यहाँ पे मार सकते हो। ठीक है, सीटी बजेगी कान में, अभी भी आप लोग मार के देख सकते हो अपने खुद के कान में, जोर से मारो ऐसा। ठीक है, एयर प्रेशर टाइट होता है और यहाँ पे सीटी बजेगी फिर ये। और फिर यहाँ पे सोलर पैक्स होता है, जहाँ पे रिब केज यहाँ पे खत्म होता है ना, यहाँ पे ये यहाँ पे आप अपने पाम से मार सकते हो। पंच पंच भी बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। अभी मैं आपको पंच कराऊंगा ना, आप पंच ऐसे कैसे तो करोगे, ठीक है, गलत तरीके से, उस पंच को परफेक्ट करना पड़ेगा, पंच स्ट्रेट होना चाहिए, वरना आप जोर से मार दोगे आपका ही ब्रिस्ट बैंड हो जाएगा। एक बार इंजर्ड हो गए फिर उसको पकड़ भी नहीं पाओगे। इसीलिए ये पाम बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, पाम अटैक, इट्स सेफ एंड स्ट्रांग एंड इजी। कुछ नहीं करना है, बस पुश करना है। ये पुश का प्रैक्टिस आप घर पे कर सकते हो। किस तरह, जस्ट नॉर्मल खड़े रहना है और ऐसे ही खड़े रहना है, और हाथ हमेशा ऊपर, प्रैक्टिस करते वक्त ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। क्यों, एक बार आपका फेस ओपन रहेगा तो फेस पे अटैक करेगा, आपके चेस्ट पे, आपके फेस पे आपको पकड़ सकता है। इसीलिए हाथ हमेशा ऊपर, डिफेंसिव टाइप, एकदम नॉर्मल रहना है और जस्ट पुश करना है। पुश पुश, फेस फेस, अटैक, जो भी आपको करनी है वो उसका प्रैक्टिस करना है। ओके, नी प्रैक्टिस करना है, नी 1 2 3 4 5, इस तरह से आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। सिर्फ नी ऐसे उठाना नहीं है, ऐसे उठाने से नहीं लगेगा उसको। ठीक है, आपको अपना हिप यूज करके उसको, अभी ये उठाया 1 2, अब ये दोनों चीज को एक साथ करना है। 1, जब ये लगेगा ना, भले उसको उसके प्राइवेट पार्ट्स पे ना लगे, एब्डोमेन पे लगे, वो आपसे 10 फीट दूर जाके गिरेगा अगर आपका अच्छा प्रैक्टिस रहेगा तो। ठीक है, कोई भी हाथ, कोई भी अटैक करो, पावरफुल करो। आप लोग को स्लैप करने आता है ना, बेसिक है, मैं नहीं सिखा रहा हूँ, आपको स्लैप करने आता है, तो स्लैप इतना पावरफुल प्रैक्टिस करो, वो स्लैप ही स्ट्रॉन्ग कर लो, उससे ज्यादा कोई सेल्फ डिफेंस नहीं है। ठीक है, आपके पास में कोई लकड़ी डली है, लकड़ी मत ढूंढो। आपके पास में कोई पत्थर डला है, पत्थर मत ढूंढो ऐसे ऐसे टाइम पे, क्योंकि जब आपको ढूंढने के चक्कर में रहते हो ना, तो सामने वाला सोच लेता है आप करना क्या है। इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। सॉरी, आवाज बहुत सारी आ रही होगी, बट फिर भी जितना हो सकता है, सेल्फ डिफेंस का एक ही बेसिक फंडा होता है कि अपने अपने जो बेसिक टेक्निक्स होते हैं ना, उनको स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, और बाकी फिर किसी क्लास में जाके, किसी फ्रेंड्स के साथ वो चीजें रिपीट कर करके ही अपने आप को सेल्फ डिफेंसिव बना सकते हो। जैसे आपकी कोई फ्रेंड है, या आपका कोई भाई है, या पापा है, जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो ये सब प्रैक्टिस करने में, उसको वो चीजें बताओ कि अगर तू मुझे ऐसा पकड़, ऐसे मुझे अगर किसी लड़के ने पकड़ा तो अब मैं क्या करूंगी, उसने मुझे ऐसे पकड़ लिया पीछे से, अब मैं क्या करूंगी। फिर उस टाइम पे सोचो उसको क्या करना है, अगर ऐसे पकड़ा तो मैं क्या कर सकती हूँ, ओके यहाँ से मैं इसको मार सकती हूँ। फिर उसको मारने का ट्राई करो। अगर वो यहाँ से डिफेंस हो रहा है, वो बच रहा है, तो फिर उसका नेक्स्ट सोचो, सॉल्यूशन सोचो। जैसे आप लोग मैथ्स में फॉर्मूला होता है,
अलग अलग मेथड्स लगाते हो, वैसे ही उसमें फॉर्मूला लगाना है। मैंने यहाँ से मारा, ये बच गया, अब क्या करना है इसे मैं एक बार बताता हूँ, ठीक है। आपको समझो पीछे से किसी ने गले से ऐसा पकड़ लेते हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ। मैं कुछ न्यू बताता हूँ जो मैंने भी प्रैक्टिस नहीं किया रहेगा, बट मैं फिर बताता हूँ, ठीक है। अभी ये है कि पीछे से आया, उसने पकड़ लिया, ऐसा हाथ रखा, ये देखो बेसिक, पीछे से कोई ऐसा हाथ रखता है ना, ऐसे हाथ रख देते हैं। अननोन पर्सन ट्रैवलिंग करते वक्त ट्रेन में होता है, ज्यादा करके बस में होता है, ठीक है। अब इसने हाथ रखा, अब इस टाइम पे ऐसा नहीं करना है, ऐसे टर्न नहीं होना है। आप एक बार टर्न हो गए और मारने को गए तो वो सामने वाला और अटैक करेगा। इस टाइम पे क्या करना है, जस्ट आपको हाथ रखना है, हाथ भी नहीं रखना है, आपको उसको टच भी नहीं करना है ना। ये एल्बो है ना, एल्बो, एल्बो, राइट लेग, लेग भी दिख रहे होंगे। ये देखो स्टेप्स देखो, अभी लेग है तो कुछ नहीं करना, आप टच भी नहीं करोगे उसको, जस्ट राइट इन, स्टेप लिया, एल्बो है, एल्बो के इसके फेस की तरफ लेके जाना है, ओके, इजी बेसिक। और इसके बाद आप उसको सॉरी भी बोल सकते हो, ठीक है। भले वो जानबूझ के कर रहा है, मारने के बाद गलती से सॉरी बोल के अवॉइड भी कर सकते हो, तो सॉरी गलती से लग गया, अगर उसके बाद ज्यादा बोलता है तो सॉरी वापस लेके उसको मार भी सकते हो, ठीक है। जैसे अभी इसने टच किया, अटैक, सॉरी, अवॉइड, डिस्टेंस मेंटेन रखना है। इसके बाद अगर समझो उसने स्लैप उठाया वापस से मारने के लिए, ये देखो, ये किया, ये कर दिया, वो सॉरी, अभी हाथ इधर रहने चाहिए, मैंने बोला था ना इसके पहले, हाथ हमेशा ऊपर, ताकि आप अपने आप को सेव कर सको। अभी इसने ये किया 1, अभी इसके पहले मैंने एक अटैक बताया था बेसिक सिंपल 2, ओके। ये पाम अटैक, फेस पे, चेस्ट पे, इतना जोर से, ये सारे टेक्निक्स होते हैं सिंपल सिंपल। आप घर पे अपने फ्रेंड्स के साथ, भाई बहन के साथ ऐसा 10 मिनट एवरी डे, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स आप अपने आप को दे के अपने अपने चीज, अपने अपने थोड़े डिफेंसिव वो इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, कुछ बोलो प्लीज। आप बोलोगे, आप पूछोगे, समझेगा, कुछ भी है किसी के अभी जो मैंने बताया उसमें कुछ और आप लोगों को कहना है तो वो भी अपन क्लियर कर लेंगे। रोशनी, साहू, किसी को भी कुछ भी पूछना है, मेरे स्क्रीन पर जो है मैं उनसे बोलूँगा। ओके, इसमें बॉयज भी है, वेरी गुड। बॉयज, राजमात्रे, इज नॉट एबल टू So लिसन। I have a doubt. हाँ, कौन If है? a person is weak, Rani. ओके, रानी पांडे। If a person is weak, अगर कोई person physically weak है, तो उसके लिए सारे self defense यूज हो सकते हैं या कुछ और टेक्निक्स है? यूज हो सकते हैं, इतना तो वीक नहीं है कि वो बोलते ना ग्रैब नहीं कर सकता, पोक नहीं कर सकता, ये कितना भी ग्रैब हो, बच्चा भी होता है, बच्चा भी एक बार बोलते हैं ना ऐसा, उसको क्या बोलते हैं, नाखून मारता है, और गर्ल्स के नाखून शायद अच्छे होते हैं, बड़े होते हैं ना, यू कैन यूज योर नेल्स, ठीक है, इतना तो कर ही सकता है ना कोई। कुछ नहीं, आंख में उंगली डाल दो ना, लगता है उसके बाद वो सामने वाला कुछ आपको कर पाएगा? नहीं, नहीं कर पाएगा ना। कान पकड़ लो, सबसे बेस्ट, दांत तो दिए, खाना काट लो। ज्यादा हार्ड टेक्निक्स नहीं बता रहा हूँ कि हार्ड टेक्निक्स में जाके ज्यादा ही हार्ड प्रैक्टिस हो जाती है, वो आपको रोज रोज करना पड़ेगा, जब आपका रिफ्लेक्शन होगा, बॉडी रिफ्लेक्ट कर पाएगी। लाइक स्लैप आया सो यू कैन डिफेंस एंड अटैक, किक आई सो यू कैन डिफेंस एंड अटैक, पुश किया सो हाउ टू कंट्रोल योर बॉडी एंड अटैक। ये सब प्रैक्टिस से होता है, एवरी डे आप प्रैक्टिस करोगे अगेन एंड अगेन, ईच टेक्निक थाउजेंड्स टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जब जाके वो इतना क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है। ये मेरे पे हाथ रखा किसी ने, फ्रेंडली हाथ है, ओके, ऐसे ही ज्यादा पुश वाला हाथ है तो मेरा बॉडी रिफ्लेक्शन में आ जाता है, मुझे उस टाइम पे क्या करना है, अपने आप रिफ्लेक्ट होता है। किसी ने स्लैप किया तो मेरे हाथ अपने आप पॉकेट में से निकल के पहले पहुंच जाते हैं डिफेंस करने के लिए। वो चीज क्यों है? क्योंकि इतने सालों से बार बार वही चीज डज, मेंटल स्ट्रेंथ मैटर्स टू, यस, मेंटल स्ट्रेंथ भी मैटर करती है ना। मेंटल स्ट्रेंथ वही हुई, आप सोच रहे हो कि मुझे डिफेंस करना है, बट आप अपने आप को ये नहीं सोच रहे हो कि मैं प्रैक्टिस करूं। आपका जब प्रैक्टिस करने का टाइम आता है तो आप सोचते हो थक जाऊंगी, 10 स्क्वाट्स कर लिए
तो आपके लेग्स पेन होने लगेंगे, आप कभी करोगे नहीं। सिर्फ जॉगिंग करना, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करने से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं होती। मेंटली फिजिकल होना है तो आप उसको चीज को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और आपको आपका माइंड स्ट्रांग रखना है कि ऐसा कोई आया तो मैं उसको मारूंगी, और मरने तक मारूंगी, ताकि वो दोबारा किसी के साथ ना करे और करने का सोचे भी नहीं। ऐसा ये थिंकिंग ही आपको स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। Yes, sir. आपको अपनी थिंकिंग स्ट्रांग रखनी पड़ेगी, जब आप जाके अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बोल सकते हो। ठीक है। और मेंटली स्ट्रांग किसी को और कोई डाउट, कुछ मैंने गलत एक्सप्लेन किया हो किसी को? बिकॉज सर टाइम माइंड वर्क नहीं करता। यस, वेरी गुड, अच्छा था। उस टाइम पे माइंड वर्क नहीं करता, इसके पहले मैंने बोला था आप डर जाओगे, आप कांपने लगोगे, आप घबरा जाओगे, बोल भी नहीं पाओगे। ऐसा होता है, बहुत से टाइम पे ऐसा होता है। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी होता था, हर एक फाइटर के साथ भी होता है, हर एक जो बिगिनर होता है सबके साथ होता है। अभी आप क्रिकेटर की तरफ आप लोग कोई बॉल फेंकोगे तो वो घबराएगा? घबराएगा? नहीं घबराएगा ना, वो कैच कर लेगा नहीं उसको। घबराएगा। कितने भी ऊपर से फेंको, कहीं से भी फेंको, कैच कर लेगा। यस। स्विमर को आप पानी में धक्का दे दोगे, वो डरेगा कि मैं डूब जाऊंगा? नहीं, ही इज अ स्विमर। बट आपको अगर स्विमिंग करनी है और आपको गीला भी नहीं होना है तो इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। नहाना है बट गीला नहीं होना, इट्स नॉट पॉसिबल। दोनों के अपोजिट अपोजिट रहते हैं, तो उसी तरह सेम ये भी रहता है। आपको घबराना नहीं है, बट आपको सेल्फ डिफेंस करना है, सो इट्स नॉट पॉसिबल। आपको उसके लिए अपने आपके माइंड को, अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जो कि आप रोज 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 प्रैक्टिस से होंगे। कोई करता है प्रैक्टिस? कोई करता नो है सर। इसमें से? No, कुछ sir. कराटे, मार्शल आर्ट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, कोई कुछ नहीं करता है ना। तो आप कैसे अपने आप को Normal डिफेंस कर exercise, पाओगे? sir. नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं बचाएगी ना। मैंने अभी इसके पहले हाँ, हैंड रोटेशन बताया था। कोई आपको मारने आया हाँ. है, आपने किसी ने गिरा दिया, आपके ऊपर बैठा है, तो आप नॉर्मल एक्सरसाइज करोगे No, कि वेट sir. वेट मुझे नॉर्मल एक्सरसाइज आता है, आप मेरे साथ ये मत करो? नहीं ना, आपको सारे टेक्निक्स नहीं. आने चाहिए। इसीलिए पढ़ाई करते हो, ओके इट्स गुड, पढ़ाई करना चाहिए। कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, करना चाहिए। डांस हॉबी है, करो। म्यूजिक हॉबी है, करो। लेकिन कहीं पे टाइम निकाल के एक दिन का कोई भी क्लासेस, जो आपको ऐसा बोलते हैं ना, जैसे क्वेश्चंस थे, मेंटली स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी अगर आप उस चीज को प्रैक्टिस करना चालू करोगे। कहीं पे भी आसपास कोई भी क्लास हो, ओके, कोई भी क्लास ज्वाइन कर लो, कुछ भी हो, कैसा भी सिखाता हो, अच्छा बुरा कैसा भी हो, बस सिखाना, उसका मेंटेलिटी प्रॉपर होना चाहिए, उनसे सीखना, और बस सारा सब ये चारों डर चले जाएंगे। ओके, एनी Yes, क्वेश्चंस? sir. और किसी को कुछ? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, नाम बोलो, मैं देखूं कौन है, कौन बात हाँ, कर रहा है। कोई भी हमारे ब्रेन के ऊपर कोई गन रखेगा तो उस टाइम क्या करें? ब्रेन के ऊपर गन रख लिया, कौन है? किसने पूछा गन का क्वेश्चन? नाम, नाम रोशनी। आपका नाम? रोशनी साहब। रोशनी, ओके। रोशनी साहू, गन रख लिया, यस। लाइक टेररिस्ट अटैक हो गया, गन रख लिया। उस टाइम पे आपको प्रेयर करना है ताकि वो ट्रिगर ना पुल कर दे, ठीक है। नहीं, उस टाइम बचने के लिए मतलब जैसे कि जैसे मतलब कि अपने हाथ से उस गन को जैसे ही छुटाने के लिए ऐसे अगर कुछ। अगर आप वो गन छुटाने की प्रैक्टिस 1000 बार कर रहे हो, वो भी रोज कर रहे हो, ओके, आप फिजिकली, मेंटली और हर चीज में स्ट्रांग हो, आपका स्ट्रेंथ अच्छा है, आपका स्टेमिना अच्छा है, और आप उस चीज की रोज प्रैक्टिस करो एवरी डे, तब उस गन को हाथ लगाने की सोचना, ठीक है, सिर्फ सोचना, फिर जाके वो पकड़ना और फिर जाके कुछ करना। क्योंकि वो गन है, ट्रिगर है, वो टॉय गन नहीं है। उसने बस पुल किया तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। उसको सिर्फ इतना करना है, इतना, उसको सिर्फ एक उंगली हिलानी है, आपको अपना पूरा माइंड बॉडी सिग्नल देना है उस डरे हुए माइंड पे, ठीक है। वो जस्ट टीवी में, वो जस्ट वीडियोस में, वो सेल्फ डिफेंस वीडियोस भी आते हैं जो गन ऐसे कर लेते हैं, ऐसा हो जाता है, ठीक है। वो सिर्फ उन चीजों में बेटर लगता है। ये सब चीजें, गन गन तक तो पहली बात पहुंचो नहीं, और पहुंच गए तो प्रे करो
और सेकंड टाइम पे उस टाइम पे अपना माइंड यूज करो, ठीक है, ब्रेन यूज करना है, कैसे उसको बात से मनाना है। आप उसको अपने बातों से मना सकते हो, किस चीज से मना सकते हो। अगर नहीं मना सकते तो देखो फिर अपने सोल्जर्स भी नहीं बच पाते ना गन के आगे, क्योंकि गन एक ऐसा वेपन बन गया है ना कि सब कंट्रोल हो जाता है उसके सामने। अगर आपका टंग अच्छा है, बी स्ट्रॉन्ग, आपके सारी चीज अच्छे रहेंगे ना, आपका टंग अपने आप स्ट्रॉन्ग होना चालू होगा। आपकी अगर जबान अच्छी है ना, तो आप कोई आपके पास भी नहीं आएगा, आप अपने लफ्जों से ही उसको दूर करके रख सकते हो। ना तो आपसे कोई बुरी बात करने का सोचेगा, ना तो कोई आपसे फ्लर्ट करने का सोचेगा, ना तो आपके पास आएगा, कुछ नहीं करेगा। अगर आप स्ट्रांगली बात करते हो किसी से, पोलाइटली बात नहीं करना है। हर एक जन से बोलते हैं ना ट्रस्ट, ट्रस्ट किसी पे नहीं कर सकते आप अपने फैमिली के अलावा। हाँ, ये मैं पर्सनली बता रहा हूँ, सेल्फ डिफेंस में तो नहीं आता, बट फिर भी कहीं ना कहीं जाके आगे जाके आता है। ट्रस्ट किसी पे नहीं करना है, भले वो आपका कोई फ्रेंड हो, कोई आपका कैसा भी हो, कितना भी अच्छा फ्रेंड हो, नेवर ट्रस्ट। आप पार्टी में जा रहे हो, समझो आप बर्थडे पार्टी में गए, फ्रेंड के साथ आपका 10 साल पुराना पहले झगड़ा हुआ रहेगा, पार्टी में गए और कुछ हो गया, फ्रेंड के माइंड में आया, क्या पता कुछ भी, गुस्सा आ गया, जेलसी, कुछ भी हो सकता है। अगर उस टाइम पे उसके माइंड में गलत आ गया तो आपके साथ गलत हो सकता है। तो आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है ये सब चीजों के लिए, ठीक है। सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कराटे एंड जूडो? ओके, कराटे एंड जूडो, कराटे एंड जूडो दोनों भी डिफरेंट स्टाइल्स है, ठीक है। कराटे इज फ्रॉम जापान एंड जूडो इज आल्सो फ्रॉम जापान। बट जूडो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि वो उसमें थ्रोज रहते हैं, उसमें पंच नहीं होते, उसमें किक्स नहीं होते, ठीक है। उसमें कुछ अलग तरीके के जो टेक डाउन होते हैं जो हमको करने रहते हैं। जैसे आप ग्रैब कर लेते हो, जो जूडो जिस वक्त उस वक्त पे काम आता है जब कोई आपके क्लोज आ जाता है, आप मार नहीं पा रहे हो, बट वो ग्रैब करके रखा है, ग्रैब में आपको कैसे गिराना है, टेक डाउन कैसे लेना है, इस तरह के दोनों गेम्स के फॉर्मेशन अलग होते हैं, रूल्स अलग होते हैं, दोनों डिफरेंट अलग है। अभी ताइक्वांडो में जाओ, ताइक्वांडो में पंचेस होते हैं बट अलग होते हैं, उसमें जस्ट स्ट्रेट पंचेस होते हैं, आपको हिट करके बैक लेना है, फेस पे पंच नहीं करना है, चेस्ट पे पंच करना है। उसमें किक स्ट्रॉन्ग होती है, सिर्फ ज्यादा किक्स यूज होते हैं, अलग अलग वेराइटीज ऑफ किक्स यूज होते हैं, उसका पॉइंट सिस्टम अलग होता है। कराटे में जाओगे, कराटे में भी सेम होते हैं, अलग अलग कराटे के टाइप्स होते हैं, जैसे फुल कांटेक्ट हो गया, सेमी कांटेक्ट हो गया, लाइट कांटेक्ट हो गया, बुजोरियो, शिकोरियो, और ये अलग अलग शोटोकॉन, ये सब डिफरेंट स्टाइल से डिफरेंट पंचेस, डिफरेंट अटैक्स होते हैं, ठीक है। कराटे एज अ गेम अभी इस चीज में बोलते हैं ना, बहुत सेफ्टी इसमें वे में आ गया है। सर, मोस्ट ऑफ टाइम दिस टाइप्स ऑफ मॉनिटरिंग पीपल्स आर इन ग्रुप ऑफ 2 or 3 पीपल्स। एक मिनट वापस चला गया चैट। हाँ, 2 or 3 पीपल्स, व्हाट टू डू देन? ओके, 2 or 3 पीपल्स। जिसके पहले वाले पॉइंट्स थे ना, उसके लिए आपकी वो सारी चीज क्लियर होनी चाहिए। और उसके बाद आपका विजन जो होता है, ठीक है, आपका विजन 180 डिग्री, जितना भी विजन है, विजन ब्लॉक नहीं होना चाहिए कि आप किसी एक बंदे पे फोकस कर रहे हो, वो सामने है और साइड में 2 खड़े हैं, ओके। आप सेंटर वाले पे फोकस कर रहे हो और जो 2 जन है वो आपके पीछे खड़े हैं, ऐसा नहीं। जितने भी जन है आपको उन तीनों को अपने विजन में रखना है और प्रॉपरली एक बार बोलते हैं ना, स्कैन कर लेना उनके हाथ में कुछ है, वो लोग किस टाइप के हैं, कौन उसमें से ज्यादा एग्रेसिव लग रहा है या तीनों ही एग्रेसिव है, उनको अपने साइड में रखना। और जैसे अभी मेरे पीछे वॉल है, आपको वॉल के पीछे जहाँ पे वॉल हो, ट्रायंगुलर वॉल हो, पीछे नेट हो, कुछ भी हो जहाँ पे आप ब्लॉक हो सकते हो, उसके पीछे आपको मूव करने के लिए जगह नहीं है, वो जगह पे आपको अवॉइड करना है। डायरेक्ट ही 3 जन आके आपको मारेंगे नहीं, ओके, डायरेक्ट ही आके नहीं मारेंगे। जब आप उनसे वो क्या बोलते हैं, डिफेंस करना चालू करोगे, लड़ना चालू करोगे, बात करना चालू करोगे, तब उन्हें गुस्सा आएगा और वो तीनों जन, चारों जन, पांचों जन आपके सामने आएंगे आपको टच करने, मारने के लिए। उतने वक्त तक आपका सेल्फ डिफेंस का जो ट्रेनिंग है, जो भी माइंड है शार्प है, उसको ऐसे यूज करना है कि उनसे दूर रहना है। ऐसे वॉक करते करते, थोड़ा बैक स्टेप होते होते सेफ जगह पे जाना है, भले वो 4 स्टेप लेफ्ट, 4 स्टेप राइट, 4 स्टेप बैक हो, बट ओपन स्पेस में जाना है जहां से आप उन सबको एक साथ क्लियरली देख सको, ठीक है। उसके बाद उन पे जो आपकी ट्रेनिंग रहेगी, आपका जैसा आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, जिस तरह से आप स्ट्रांग हो, उन तीनों से डील कर सकते हो। और नहीं हो स्ट्रांग और कुछ भी नहीं हो, एक ही जन को डील कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, वो एक जन को तो जान से मार ही दो, ठीक है।
उस एक जन की तो हालत खराब कर ही दो, ताकि वो 3 वापस भी चले गए तो 2 जन तो बोले कि भाई हम दोनों अच्छा हुआ बच गए, इसकी बहुत बुरी हालत की उस लड़की ने या उस लड़के ने। एक जन को तो छोड़ो मत, ताकि वो एक जन से वो लोग सीखे कि नेक्स्ट टाइम हमारा भी ये हो सकता है। किसी को नहीं छोड़ना है, एक जन को तो मत छोड़ो, ठीक है। मारना बहुत इजी है, जैसे पता है चिकन नेक, मुर्गी रहती है, मुर्गी को मार देते हैं, बकरे को मार देते हैं, किसी भी एनिमल्स को मारना इजी होता है, वैसे ह्यूमन बीइंग को भी मारना बहुत इजी है। कुछ कुछ चीजें आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, इट्स इजी टू किल। सबसे बेस्ट है, मेरा तो एक ही है, मैं कभी किया नहीं, बट इन फ्यूचर कभी कुछ ऐसा आए तो मैं करना चाहूंगा, मैं आंख फोड़ना चाहूंगा। आप लोग आंख फोड़ दो, फूटने में फोड़नी नहीं है ना, तो अपने थंब से है ना ऐसा प्रेस कर दो, ओके, ऐसा प्रेस कर दो उसको। अगर आपके कोई सामने है, उसके आंख प्रेस करके उसको पीछे की तरफ पुल करो, वो गिर जाएगा, कितना भी बड़ा बॉडी बिल्डर होने दो, कितना भी बड़ा खली होने दो। आप एक बार उसके आईज बोलते फिंगर करके ऐसा खींचोगे ना, जो साइड खींचोगे वो साइड जाएगा वो, ठीक है। आई सबसे बेस्ट है, नोज काट लो, दांत दिए ना भगवान ने, तो अगर आपने उसको ऐसे पकड़ लिया ना सामने वाले ने, और वो बहुत स्ट्रांग है, आप छूट नहीं पा रहे हो, आप हिल भी नहीं पा रहे हो, ये है ना, चमड़ी निकाल के फेंक दो, जगह जगह काटो उसको। क्योंकि अगर हम लोग ये सोचेंगे छी इतनी गंदी बात है, किसी को काटूं, अननोन पर्सन है, मैं कैसे उसको मतलब टच कर सकती हूँ या उसको काट सकती हूँ, अनहाइजीनिक है। अब ओके, काटा नहीं, उसके बाद उसने आपके साथ गलत किया तो फिर पछताओगे ना, वो ज्यादा गलत होगा ना। तो वो ज्यादा गलत होने से बेटर है कि छोटे छोटे सिंपल टेक्निक्स यूज करो और सामने वाले को अपने से दूर रखो, बस, ठीक है। अभी थोड़े थोड़े चलो पंच की अपना पाम प्रैक्टिस कर लो अगर करना है, ओके, क्योंकि बहुत से लोग खड़े मैंने होके एक कर बार नहीं किया रहे। हाँ हाँ हाँ। मैंने एक बार किया थे। कौन है? रोशनी? यस। काटा था आपने? हाँ मतलब मेरे भाई मेरे साथ मजाक कर रहे थे, ऐसे ही मुझे जोर से, जो बड़े भाई रहते वो मेरे साथ मजाक कर रहे थे और मुझे जोर से इफेक्टिव था ना? पकड़ आपका लिया, काटना तो मैंने इफेक्टिव था? एक काट लिया, तो वो छोड़ दिए मुझे। ओके, आपका इफेक्टिव था ना काटना? नो, मैंने बहुत ट्राई किया पर लास्ट को मैंने ये वाला ट्राई किया, छोड़ दिए। आपने मतलब काटा तो उनसे, छोड़ दिया ना? हाँ हाँ हाँ, फिर काटने से सब लोग डरते हैं, मच्छर काटता है तो डर जाता है इंसान, हाँ। फिर इंसान का तो और पॉइजनस होता है बाकियों से। काटना है, जब तक काटना है ना तब तक वो छोड़ना दे, रोने ना लगे। और किसी को कुछ पूछना है? यूजुअल किसका हो रहा है, इग्नोर है भाई, ये चिंकू चिंकू कैसे मरा, मेरा चिंकू कैसे मरा, और बताइए। हाँ खुशी, आज समवन, किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है? Sir, hello. हाँ Sir, we have a question from our audience. Ki, Okay. can we carry the paper spray for self-defense? yes, it's legal, you can carry, Yeah, okay. it's legal but not in school, not in college, क्योंकि किसी किसी कॉलेज के रूल्स अलग होते हैं, वहाँ पे तो मोबाइल भी अलाउड नहीं करते, हाँ, जो कि लीगल होना चाहिए फॉर सेल्फ डिफेंस। मोबाइल भी यूज कर सकते हो आप सेल्फ डिफेंस के लिए, कॉल कर सकते हो इमरजेंसी में, बट वो भी कहीं कहीं पे अलाउड नहीं होता, जो कि होना चाहिए। पेपर स्प्रे इजी है, पेपर स्प्रे अगर जहाँ पे लीगल नहीं है ना, उसके ऊपर अपने परफ्यूम का स्टिकर चिपका दो और कैरी करो साथ में, yeah. कोई नहीं पहचानेगा, कोई मार के नहीं देखेगा, मार के देख लेगा तो खुद समझ जाएगा क्या है, Yes, yes. यू कैन कैरी। बट पेपर हाँ स्प्रे भी बोलते हैं कि अगर तुमने एक बार यूज किया, उसके उस पे टैग पे ही आता है कि एक बार यूज किया, तो पुलिस स्टेशन में जाके बताना पड़ता है कि तुमने इधर मारा, ऐसा कुछ। तो वो इसलिए करते हैं ना कि सिर्फ अगर तुम्हारी सिचुएशन डेंजर में हो, अगर गलती से यूज हो गया तो यू डोंट नीड टू मेंशन एनीथिंग ना, ऐसा कुछ। हाँ, गलती से मेंशन हो गया तो कोई वो नहीं है, आपने कहाँ पे यूज किया है। अब जैसे कोई आपको टच कर रहा था, आप रात में अंधेरे पे चल के जा रहे हो, पीछे से कोई ऐसे लड़के लोग जो है वो आपको फॉलो कर रहे हैं या सामने से आ गए स्टॉप कर लिया, उतने वक्त तक आपका माइंड इतना प्रिपेयर रहना चाहिए, ओके, ऐसा मतलब ऐसा फील हुआ तो आपका हाथ वहां पे जाना चाहिए, और उसको भी ढूंढता इतने अंदर नहीं रखना है छुपा के कि चेन खोलते रहो और सामने आपके पास आ जाए वो लोग, ठीक है।
इजी टू कैरी होना चाहिए, इजी टू टच होना चाहिए, हैंडल होना चाहिए। सीधा निकाला और स्प्रे कर दिया। पुलिस को बताने की बात की बात है, ओके, उसमें मेंशन किया हुआ है। मेंशन तो लॉज में बहुत सारी चीज की है जो हम खुद फॉलो नहीं करते, है ना। कभी कभी हम लोग बहुत से रूल्स तोड़ देते हैं, आपके बताते हैं सर मैंने ये रूल्स तोड़ दिया, नहीं बताते। उस टाइम पे आपका डिफेंसिव होना जरूरी है, आपका खुद का बचना जरूरी है। ये सोचना जरूरी नहीं है कि अगर मैंने यूज किया तो पुलिस में जाना पड़ेगा तो मैं यूज नहीं करूंगी, नहीं, आपको यूज करना है। वो मर जाए, उसकी आंख फूट जाए, कुछ भी हो जाए, उसको जाना रहेगा, वो चला जाएगा। उसके बाद आपके पास आएंगे तो आप अपने आप को बोल सकते हो मेरे पे अटैक कर रहा था, मैंने उसके ऊपर यूज किया। और पेपर स्ट्रोक इसको मैं क्या घर में यूज करूं खाना बनाने में, डिफेंस के लिए नहीं यूज करूं तो। बट वो चीज किसी को नॉर्मली यूज नहीं करनी है। फ्रेंड्स के ऊपर देखो कैसा लग रहा है, जलन हो रही है क्या, ओरिजिनल है क्या, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि कभी कभी तो बहुत बहुत ज्यादा डेंजर होता है, मस्ती मस्ती में हो जाता Definitely. है। यस, एनी Definitely, क्वेश्चन? sir. We have one more question कि ये सब चीजें तो हमने ध्यान में रखी है, and as women we especially tend to keep these things in our minds. But since we are observing 16 days of activism against gender-based violence, जिसका मतलब होता है Okay. कि वो किसी के भी ऊपर हो सकता है, स्पेसिफिकली हाँ। वुमेन के ऊपर तो women are the major victims. But Okay. बहुत सारे ऐसे भी men हैं that they have these issues. तो उनके लिए एक कॉमन ट्रिक क्या हो सकती है that on the peak that they can do apart from the pepper spray and the punches and everything? अगर आपको कोई पीछे से पकड़ ले तो it's not possible for a normal person कि मैं मैं पीछे बताता हूँ click कर दूं। मैं हाँ, बताता हूँ yes. अजिंक्य, नॉर्मल ऐसे ही ना, पकड़ ले ऐसे ही, जस्ट शो योर थंब। अश्विनी मैम, Yes, आपको yes. सुनाई दे रहा होगा तो आप मुझे Yes, yes. बता दो। ओके, ऐसे ही ना, Yes, ऐसे ही sir, पकड़ yes. लिया किसी को भी, ठीक है। अब इस Yes. टाइम पे क्या करना है, आपको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना है। आप ज्यादा स्ट्रगल करोगे तो वो और ज्यादा टाइट करेगा, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। इस टाइम पे आपको जस्ट एक लेग अपना बाहर निकालना है, ओके। एक मिनट में नीचे रखता हूँ। हाँ ठीक है, मैं एक बार पकड़ता हूँ सबको, सर करके बताएंगे, ठीक है। ये देखो मैंने इनको ऐसा पकड़ लिया, ओके। अब ये मूव करेगा, अगर इससे थोड़ा भी स्ट्रगल किया तो मैं क्या करूंगा, और टाइट कर लूंगा, ओके, और टाइट करूंगा, ठीक है। मैंने टाइट भी कर लिया है, ओके, ज्यादा टाइट किया है। नेक्स्ट ये देखो, अभी फर्स्ट वाला है तो नीचे जाके लेग लेग के साथ सेंटर लेग, और उस पर बैठ जाना है, उस पर बैठ जाना है। हाँ ये किया और बैठ जाना है, ओके। आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, घर पे बड़ा मजा आता है। सेकंड पकड़ लिया, हाँ सेम अपोजिट, मतलब जो भी आपको कंफर्टेबल लगेगा वो साइड बाहर निकालना है, ठीक है। इसके लिए आपका स्ट्रांग होना जरूरी है, और स्ट्रांग होने के लिए थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना जरूरी है। सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स बहुत मजा आता है प्रैक्टिस करते वक्त, क्योंकि उसमें आप नया 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 कुछ कर सकते हो। थोड़ा फनी भी होता है, गिराना मारना, अभी देखा कैसे था, बट बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। आपको उसको उठाना भी नहीं है ना, तो जस्ट आप अपने बोलते ना पैरों से भी उसको गिरा सकते हो, मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो अभी इसने मेरे को पकड़ लिया, हाथ नहीं कान, जस्ट जैसे सेम बताया था, लेग पीछे लेना है और टच भी नहीं करना है, ओके। जस्ट अपने हिप से उसको पुश कर देना है, ओके। इट्स इजी। बैलेंस बिगड़ जाता है, और एक बार बैलेंस बिगड़ गया तो सामने वाला खुद को बचाएगा कि आपको गिराएगा या आपको पकड़ के रखेगा, है ना। बहुत सा इजी है, बस आपको वो हिप निकालनी है और हिप से पुश करना है। ये सारे टेक्निक्स, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हो। ये तो और डेफिनेटली वी कैन ट्राई मोर, डेफिनेटली। यस, बहुत इजी है। पापा को बोलो, मम्मी को बोलो पकड़ने, और उसमें अपना दिमाग लगाओ आप कैसे बच सकते हो। मम्मी टाइट करेगी, पापा टाइट करेंगे, आप उसके और अगेंस्ट दिमाग लगाओ, ओके। वापस से पकड़ो, मैं अभी बताती हूँ, वापस से पकड़ो, अब मैं बताती हूँ। ऐसे 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 वो डेवलप हो जाएगा आपका एक खुद का सेल्फ डिफेंस टेक्निक। सीखी हुई चीज से ज्यादा बेटर होता है कि खुद से सीखना और खुद से उसको वो करना, बट वो चीज परफेक्ट होनी चाहिए, काम करनी होनी चाहिए। मालूम पड़ा सीख लिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, गए और फेल हो गई, ऐसा नहीं, क्योंकि वो टाइम पे एक बार फेल हो गए तो फेल हो गए। और पूछो कुछ। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना, जो हम पैर से ऐसे
लात मार के जो करते हैं। हाँ सब कर सकते हैं, पर आप में कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, स्ट्रेंथ अच्छी, पावर अच्छी होनी चाहिए। आप चिल्ला भी दोगे ना तो भी सामने वाला थोड़ा उसका विल पावर डाउन हो जाएगा मारने से पहले। ओके, और Sir, there is one more question. We Yes, can ma'am. also use emergency SOS system. Can we use emergency SOS system? हाँ आप यूज कर सकते हो, लेकिन उस पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि एसओएस सिस्टम ज्यादा काम नहीं करता। कभी कभार इन केस इमरजेंसी में बहुत टाइम लग जाता है। वो तो कभी कभी मोबाइल पॉकेट में रखेंगे ना तो वो सिस्टम चालू हो जाता है, कॉल लग जाता है, बट वो कभी यूजफुल नहीं होता, उस पर रिस्पॉन्स भी नहीं आता कि सर Okay. आपने अभी कॉल किया था। उसने अभी क्या इमरजेंसी में, किस इमरजेंसी में यूज करोगे आप वो चीज? नहीं यूज कर सकते ना, वो जस्ट बताने के लिए उसमें कॉल किया, आई हैव एन इमरजेंसी प्लीज, कोई हेल्प भेजो। लेकिन हेल्प आने तक आपको पता है इंडिया में क्या होगा। इंडिया में नहीं, हर एक कंट्री में, सिर्फ Yes. इंडिया नहीं, बहुत सारे कंट्रीज में हर एक सिचुएशन में कभी कभी पुलिस आना भी मुश्किल हो जाता है, कभी दूर होते हैं कभी पास होते हैं। 10 मिनट भी एक्स्ट्रा हो गए ना पुलिस को आने में, तो 10 मिनट में भी बहुत कुछ हो सकता है। 10 मिनट में आप गायब होते हो, 10 मिनट में आप मर सकते हो, 10 मिनट में आपके साथ कुछ गलत काम हो सकता है, पुलिस ढूंढते रह जाए, मिलोगे भी नहीं 10 मिनट में। बस वो सिर्फ इंफॉर्मेशन जाएगा कि इस कॉल से कंप्लेंट आई थी, बस वो उसके लिए है। बाकी का आपके पास कभी टाइम है, कुछ एक्स्ट्रा टाइम है, ऐसा कुछ फील हो रहा है सस्पिशियस, लाइक आप ट्रेन में हो, बस में ट्रैवल कर रहे हो, आपको फॉलो कर रहा है, आपको बैड टच कर रहा है, तब सेल्फ डिफेंस थोड़ा टाइम लेके आप उसमें कंप्लेन कर सकते हो, सर ऐसा ऐसा मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, ऐसा ऐसा मुझे प्रॉब्लम है, ये बस नंबर है, मैं इस वे से इस वे में ट्रैवल कर रही हूँ, प्लीज हेल्प। ऐसे आप ट्रैवल कर सकते हो। और सर लोकेशन भी शेयर होता है ना एसओएस सिस्टम से? यस होता है। लोकेशन तो आप व्हाट्सएप से शेयर कर दो आपके फ्रेंड्स को, सबको, उनको भी शेयर कर सकते हो, बता सकते हो कि मैं ये रास्ते जा रही हूँ, मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। भले वो हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन आपका एक इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। और आप एसओएस से वहाँ पे तो आपका लोकेशन शेयर हो ही जाता है, एक बार आप कंप्लेन रेज करते हो तो आपका वहाँ पे दिख जाता है उनको कि यहाँ से कॉल आया यार, ये लोकेशन है, पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है, बट टाइम लगता है फॉर ट्रैफिक। कोई क्वेश्चन? I think that we are done for the day, sir. Would like Ashwini to overtake again. Okay, so it was really a very interesting session, sir. I'll ask everybody fill up the feedback form by given link in the chat box. And thank you so much, sir, for your precious time and guiding us to self-defense tactics. Now, let's see a few words from Khushi. So greetings everyone. My name is Khushi and I am honored to present the vote of thanks today. Firstly, I would like to thank Mr. Ajay Bundela for taking time out from his busy schedule and joining in with us today. I am grateful to you, sir, for teaching these techniques, these wonderful skills to us for this particular workshop. I would also like to appreciate the presence of our audience. They were very active. Hats off to them. I would also like to thank our host for today, Ms. Ashwini Mahajan, and our volunteers, our public health office volunteers from our college, who were working relentlessly for this particular workshop. I think everything went well, and I hope that you guys have a fantastic day ahead. Thank you once again to each one of you for staying till the end. And that's it. Thank you. Thank you. Thank you, Khushi. Now I would like to end our today's workshop with one of my favorite quote by Anna Frank. It is as, how wonderful it is that we don't need to wait a single movement before starting to improve the world. So let's take an initiative to spread the awareness about gender-based violence and fight against it. Thank you so much all for joining in today's workshop, and hope it aid of trouble. Thank you. Guys,